پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ پاک فوج کی آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت پر بھرپور کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل عزم ملک کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنا رہا ہے۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ چمن کے شہریوں کی افغان طالبان کے سویلین آبادی پر بزدلانہ حملوں کی شدید مذمت اور منہ توڑ جواب دینے کا مطالبہ۔ افغان طالبان رجیم کا شہری آبادی کو نشانہ بنانا کھلی جارحیت اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے چمن میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کا عمل انتہائی قابل مذمت ہے۔ افغان طالبان کے چمن میں سول آبادی پر حملے سے ایک جوان شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بنوں میں پولیس نے بڑا دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا۔ چوکی مزنگا پر رات گئے شدید فائرنگ کا تبادلہ، دہشت گرد فجر تک جاری مقابلے کے بعد پسپا۔ تازہ دم نفری اور سیکیورٹی اداروں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ آپریشن میں اسلحہ اور مشکوک سامان برآمد، کانسٹیبل فرید اللہ معمولی زخمی۔ خیبر پختونخوا پولیس کا دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار۔ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئی۔ فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا دعویٰ۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری اور اس سے برآمد مواد نے پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پول کھول دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، بھارت پاکستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ 7 دن گزرنے کے باوجود بھارت پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کا ایک بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے پاکستان دہشت گردوں کی بھارت میں تربیت، علاج سمیت دیگر سہولت کاری کے ناقابل تردید شواہد دنیا بھر کے سامنے رکھ چکا ہے۔ بھارتی ایویشن مسلسل تنزلی کا شکار، مودی کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا۔ مشرق وسطی کے بحران اور پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز شدید مالی خسارے کا شکار۔ ایندھن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے بھارت کی 3 ایئر لائنز کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا۔ حکومت سے ریلیف اور قیمتوں پر نظر ثانی کا مطالبہ، پروازوں میں کمی اور آپریشن محدود ہونے کا خدشہ۔ ماہرین کے مطابق مودی سرکار کی معاشی نااہلی اور ناکام حکمت عملی نے بھارتی ایویشن انڈسٹری کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف طویل المدتی بحری ناکہ بندی کی ہدایت۔ ایرانی تیل برآمدات اور معیشت کو نشانہ بنانے کا فیصلہ۔ امریکی ناکہ بندی سے ایران کی سمندری تجارت متاثر۔ چاہ بہار بندرگاہ پر جہازوں کی غیر معمولی تعداد۔ ایران نے امریکی اقدام کو سمندری قذاقی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے جہازوں کی رہائی کا مطالبہ۔ ایران کا UN سیکریٹری جنرل کو خط، امریکی ناکہ بندی کی مذمت۔ خط میں لکھا، واشنگٹن کو ان اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اٹھانی۔ ایران کا امریکہ کی جانب سے جہازوں کو قبضے میں لینے پر اقوام متحدہ سے شدید احتجاج۔ جہازوں کا قبضہ فوری ختم کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اور صدر سلامتی کونسل کو خط میں امریکی ناکہ بندی کو بحری قذاقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی رویہ بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ ایران کو امریکی اقدامات کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ سے جنگ بندی کے باوجود وہ جنگ کو ختم نہیں سمجھتے۔ ترجمان ایرانی فوج محمد کا بیان، کہا کہ ایرانی افواج تیاری اور اہداف کی فہرستیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں۔ پینٹاگون، صدر ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں دکھا رہا۔ امریکی میڈیا کا انکشاف۔ پینٹاگون پر صدر ٹرمپ کو ادھوری معلومات دینے کا الزام۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا جنگی بریفنگ پر سوال۔ امریکی میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش۔ ایران کی فضائی اور میزائل صلاحیت برقرار۔ صدر کو خوش کرنے کے لیے حقائق چھپانے کا انکشاف۔ ماہرین نے خطرناک رجحان قرار۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں آئے، 33 ادارے اور شخصیات پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر تیل کی ترسیل میں کردار ادا کیا۔ OFAC کی بینکوں کو وارننگ، آبنائے ہرمز سے جڑی ادائیگیوں پر نظر۔ چین کے صوبے شینگڈون کی ریفائنریز بھی زیر بحث۔
ईरान NPT की जायजा कॉन्फ्रेंस 2026 का नायब सदर मुंतखब, अमेरिका ने फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ईरानी सफीर रजा नजफी और अमेरिकी नुमाइंदे को एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोला बारूदी। अमेरिकी सफीर का कहना है इंतखाब नामुनासिब है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद खदशात हैं। जौहरी अदम फैलाव के उसूलों की पामाली करने वाले मुल्क को ऐसे फोरम की क़यादत नहीं सौंपी जानी चाहिए। ईरान ने इंतखाब को सफारती कामयाबी करार दे दिया। ईरानी सफीर का कहना है फैसला कुन ममालिक के एतमाद का इजहार है। आबनाए हुर्मुज में ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स की सिक्योरिटी एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। आबनाए हुर्मुज में ज़ेरे समंदर केबल्स को खतरात, डिजिटल मईशत मुतासिर होने का खदशा। ईरान ने खबरदार कर दिया केबल्स खत्ते की डिजिटल मईशत के लिए एक हसास और कमज़ोर नुक्ता साबित हो सकती है। माहिरीन ने कहा कि खत्ते में कशीदगी या समंदरी सरगर्मियों में इजाफा होने की सूरत में इन केबल्स के मुतासिर होने का खतरा बढ़ सकता है, जिसके असरात पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते पर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए भरपूर सालिसी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए बेपनाह काविशें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी। जंग बंदी के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा बाद रागची पाकिस्तान आए, जहाँ सैर हासिल और मुस्बत गुफ्तगू हुई। 11 और 12 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर हुक्काम ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकातें। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकातें की। वज़रा की जानिब से जारी मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। हनीफ अब्बासी की वज़ीर-ए-आज़म को रेलवे उमूर पर ब्रीफिंग। फ्रीट सर्विस को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म का जोर। मुसाफिरों की सहूलियात पर इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित में नुमाया पेशरफ। कीनिया और एथियोपिया के साथ तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव TD मोहम्मद जुबैर मोतीवाला के मुताबिक कीनिया को बरामदात में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई बरामदात $251.6 मिलियन से बढ़कर $319.9 मिलियन तक पहुँच गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि चावल, टेक्सटाइल, अद्वियात, IT और काबिल तजदीद तवानाई बरामदात में इजाफा हुआ है। अफ्रीकी मंडियों में तोसी के लिए B2B रवाबित और सरमायाकारी पर जोर। हमें किसी की शख्सियत का सहारा लेने की जरूरत नहीं। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। एजाज शफी की एक बात भी ठीक नहीं, हल्फन कहती हूँ, अपोजिशन के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा ये ऐवान है, यहाँ हर बात सच होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। स्कूल एजुकेशन के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास जारी और नए अवामी मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटाइज करने का फैसला। 120 दिन में डिजिटाइजेशन मुकम्मल करने की हिदायत की गई। शहरी ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तों का स्टेटस चेक कर सकेंगे। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। डिजिटल पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विजन है। 2016 में 3G और 4G इंटरनेट लॉन्च किया गया। वफाकी वज़ीर IT शेजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा एक माह कबल 5G स्पेक्ट्रम की बोली का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। 5G मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड में तेजी लाएगा। पाकिस्तान डिजिटल कैशलेस मार्केट की जानब गामजन है। शहरियों को इंटरनेट की बेहतर सहूलत फराहम करने पर अमर पैरा है। शोबा सेहत और तालीम में भी इंटरनेट का अहम किरदार है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम को डिजिटल बनाने का बड़ा फैसला। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट की डिजिटाइजेशन का हुक्म जारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि 30 जून तक मुकम्मल डिजिटाइजेशन की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रजिस्ट्रेशन की हिदायत कर दी है। फील्ड दफातर को रोजाना 1000 इंदराजात मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। 30 जून के बाद मैनुअल दस्तावेजात गैर मौसर करार दी जाएंगी।
वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची और लाहौर के दरमियान तजुर्बात के तबादले पर इत्तेफाक। शहरी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। मेयर कराची ने लाहौर की आवाम की मेहमान नवाजी को सराहा। कहा यह मोहब्बत करने वालों का शहर है। उन्होंने वज़ीर हाउसिंग पंजाब को कराची आने की दावत भी दी। कहा मज़ीद करीबी ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है, सिर्फ चेहरे बदलने से मसला हल नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। कहा कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको अवाम की हकीकी हिमायत हासिल हो। पूरे मुल्क में 50,000 अवामी कमेटियाँ कायम की जाएंगी ताकि निचली सतह पर अवाम के मसाइल हल किए जा सकें। उन्होंने मौजूदा माशी सूरत हाल पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़लों के मुतासरीन की याद के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। ज़लज़ला मुतासरीन से आलमी यकजहती का इजहार। पेश की वार्निंग सिस्टम और मजबूत ढांचों पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में अक्टूबर 2005 का तबाहकुन ज़लज़ला कौमी याददाश्त पर आज भी नक्श है। सानहा कौम के अज़्म और हौसले की अलामत है। मरियम नवाज का ज़लज़ला मुतासरीन के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कुदरती आफात से मुतासरीन से इजहार यकजहती किया। 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन के ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार। पंजाब को आफात के मुकाबले के लिए मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मरियम नवाज ने इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबाबंदी और आगाही को नागुज़ीर करार दिया। निसाब में कुदरती आफात से मुताल्लिक मज़ामीन शामिल करने की तारीफ भी की। बानी पीटीआई बिला वजह जेल में है, नजरिया कैद नहीं किया जा सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सेनेटर ऑफ एक्सीलेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बानी पीटीआई की बीनाई 85% तक मुतासर हो चुकी है। उन्हें अपनी लीगल टीम और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जाती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी के नजरिए को अमली शक्ल देने के लिए काम कर रही है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के इक़दाम जारी हैं। तालीमी इदारों से फरसूदा कोर्सेज का खात्मा किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं। सनती सारिफीन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। IMF की गैस लेवी में कमी की इजाजत। कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% कमी मुतवक्के। गैस लेवी का नया फार्मूला मंजूर। टैरिफ औसतन बुनियाद पर मुकर्रर होगा। बिजली की तलब कम होने पर लेवी दोबारा बढ़ाने की शर्त। रवा माली साल लेवी से 105 अरब रुपए आमदन का हदफ मुकर्रर रहे। पंजाब में CCD के मुबैना मुकाबलों में तेजी। एक ही रोज में 5 मुकाबले, 11 मुल्जिमान हलाक। लाहौर में डिफेंस इकबाल टाउन और चौहंग में 6 मुल्जिमान मारे गए। शेखुपुरा में फायरिंग के तबादले में 3 इश्तिहारी मुल्जिमान हलाक। साहिवाल में मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कराची के इलाके सदर सराफा मार्केट में दुकान में मुबैना नकब जनी की वारदात। भारी मालियत का सोना चोरी कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस। DIG साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। कहा नकब जनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को हरकत में लाया जाए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद और मॉडर्न तकनीक से इस्तेफादा किया जाए। केस की तफ्तीश और पेशरफ से आगाह रखा जाए। वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत। हुकूमत पाकिस्तान कदीम सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए कोशां। वादी कैलाश यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे में शामिल। पाकिस्तान के लिए अहम सकाफती संग मील हासिल। चित्राल की कैलाश वादी अपनी कदीम तहजीब के बाइस नुमाया। मुनफरिद जोग्राफिया सकाफती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन। यूनेस्को की जानिब से वादी कैलाश को आलमी विरसा करार देना पाकिस्तान में मजहबी और सकाफती हम-आहंगी और तहफ़्फ़ुज़ का आलमी एतराफ़ है। चीन के शहर सानिया में एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान ने 3 तमगे जीत लिए। रेसलिंग में 2 सिल्वर मेडल्स हासिल। असदुल्ला और इनाम बट की शानदार कारकर्दगी। कबड्डी में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। फाइनल्स में ईरानी पहलवानों से मुकाबला। मोहम्मद अब्दुल्ला ब्रॉन्ज मेडल मैच में नाकाम।
ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کے لیے نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان. ایمالیہ کر 15 رکنی ٹیم کی قیادت کریں گی. صوفی ڈیوائن اور سوزی بیٹسن اسکواڈ میں شامل. دونوں سینئر کھلاڑیوں کا آخری ورلڈ کپ ہوگا. ورلڈ کپ 12 جون سے انگلینڈ میں شروع ہوگا. ورلڈ کپ سے قبل انگلینڈ کے خلاف سیریز بھی شیڈول.